Assalamu alaikum, everyone. This is Ammaar bin Salim. Welcome to another episode of Outloud with Ammaar. This is season 4, and we're recording episode 2. And today we're going to be talking about primarily human resources. So, एक ऐसा मसला है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आके they just don't find their way to the right answer. So we have someone who has a lot of knowledge about human resources operations, talent acquisition, and everything that goes into it. Because अक्सर लोग ये पूछते हैं कि यार इंटरव्यू में क्या बोलना है, इंटरव्यू में क्या नहीं बोलना, ओ आई मेड दैट मिस्टेक, या क्या सैलरी पूछनी चाहिए थी अपने पहले इंटरव्यू के अंदर, नहीं पूछनी चाहिए थी, एंड हाउ टू बेसिकली एस योर इंटरव्यू to landing a good job. And for this purpose, I am very, very grateful to have been joined by Ms. Sadia Afzal, who is presently serving TechCell as Director for Organization Excellence and will soon be joining PSDF as an HR consultant. So, Assalamu alaikum, Sadia. Walaikum salam, Ammaar. How are you doing? Thanks for having me. Alhamdulillah, I'm very well. Thank you very much for taking time out of your schedule for us. And I know this is after office hours, and it's not very easy to find time out for anyone then. No problem. I'm very happy to connect with you and contribute. Thank you once again, Sadia. So quickly jumping into the podcast today, just walk us through your background, like कैसे मतलब सारा schooling, college, and then university, and then how did you decide कि आपने HR ही करना है या पहले कुछ और सोचा और फिर HR में आ गए? That is a very interesting question, and I'm happy that you asked me, and we are starting from this because HR has been a very dedicated decision. It was a thoughtful decision that I made. So I've been bred and born in Saudi, and later on for higher education, I moved to Pakistan, Lahore, with my family, did my graduation, simple graduation in general sciences. And while I was doing my bachelor's, I got an opportunity to do volunteership in Shaukat Khanam. And the first year I did in marketing because my sister was working there in quality assurance department. So she was of the view कि इसको घर नहीं बैठने देना. I'm going to bring her along. Acha. And the bachelor was from? My bachelor's from Punjab University. Punjab University, right. Acha. Yes. And in the second year of my graduation program, I did a volunteership in HR department of Shaukat Khanam, which was fully established as per all the departments and the sub-departments that an organization requires in order to thrive the culture and people in the organization. So I got to a very good exposure over there, just my recruitment, selection, compensation, benefits, legal requirements, training and development. So बहुत अच्छा फ्लेवर मिल गया था, and there I decided. उससे पहले decided नहीं था कि जनरल साइंसेस में ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना है. I was good in stats, but I could have pursued my experience in that. लेकिन professionally, career wise, I was struggling to find out कि फिर आगे मैं अपना career किस में बनाऊंगी if I do something with stats. So thanks to my volunteership experience and a great experience that Shaukat Khanam provided me. So masters किया Punjab University से again because Punjab University was one of those university जो management के साथ साथ HR में specifically सारे courses पढ़ाती थी. Normally you do MBA, marketing or finance from other universities. So HR में exclusively it was being offered in Punjab University. Right. So basically, what I take from your early experiences in your career is that Shaukat Khanum, working at Shaukat Khanum, played a pivotal role in directing your journey. यानी कि HR की तरफ जाना. Oh yes. क्योंकि I remember I was at a university a couple of years back. So जब मैंने अपना MBA करना था, so I went to a university, LUMS, and I was like straight out of my bachelor's, और मैंने कहा यार अभी फॉरेन ज्वाइन कर लेना चाहिए MBA या I should take some time and all. And somebody gave me a wonderful answer. ने कहा यार अगर अभी तुम ज्वाइन कर लोगे ना, you wouldn't know what you're actually doing. For instance, even if you want to go and join a business, let's say, you wouldn't know कि यार तुमने supply chain में जाना है, तुमने marketing में जाना है, तुमने HR में जाना है, तुमने communications में जाना है. It's better to after your bachelor's go and get some experience and then decide कि तुमने किस चीज के अंदर MBA करना है. बिल्कुल, you're very right. इसलिए as I mentioned कि मैंने भी पहले मार्केटिंग में किया, मार्केटिंग अच्छी लगी थी और आइडिया हुआ था कि मार्केटिंग और सेल्स में बड़ा फर्क है. एंड देन द सेकंड ईयर आई गॉट एक्सपोजर ऑफ HR. तो फिर मैंने कहा यार कि HR इज अ मिक्स. HR के लिए भी मार्केटिंग के स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो
I made it my way. लेकिन unfortunately उस वक्त ना marketing और sales in our MNCs and in our local organizations वो same treat होती थी. Digital marketing इतनी in हुई नहीं थी. So professionals होते थे sales and marketing. Differentiation नहीं थी. तो मैंने कहा भाई अभी हम चलते हैं HR में, फिर देखे जाएगी कि आगे क्या करना है. अच्छा, अभी चलती है एचआर में. अच्छा, एचआर के बारे में वैसे एक बात बड़ी मशहूर है कि एचआर आर द किंग्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट ट्रू? नहीं, I wish people can really see through us and the hardships that we go through day in and day out. But that's true कि लोग ऐसा समझते हैं. But I think it's the driving force of the organization. To be very honest, it's the driving force. एंड किंग कहना या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी किंगडम समझना, एक सल्तनत समझ के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कराना, आई डोंट थिंक सो ये दैट्स ट्रू, वैसे बट दैट्स थोड़ी व्हाट सी देखे पीपल जाए तो किंगडम है ना, लाइक मतलब इन द सेंस के हम लोग तो हैं, टाइम पे आना है, टाइम पे जो चेकआउट करना है, वो नहीं हुआ तो मसला बन गया, एचआर ने सैलरी काट ली. आप लोगों को तो यार मतलब पता है भाई, हम लोगों ने अंदर ही सिस्टम रखा हुआ है सारा, हमने किसको रिस्पॉन्ड करना है, सबकी सैलरीज भी पता है वो भी सब चीजें हैं. अच्छा, I think then it's very from individual to individual because I am an individual very high on my self assessment. So ओके. and I walk my talk. If I am late, I know that people will point out me. Fingers will be raised towards me. कि सादिया ऐसे करती हैं, सादिया वैसे करती हैं, मुझे एग्जाम्पल बना के जो है ना लोग एक्सक्यूज फाइंड आउट करेंगे. इट्स या. नॉट जस्ट अबाउट कमिंग टू ऑफिस बट रिलेटेड टू माई बिहेवियर एज वेल. How I'm speaking, if I'm angry, if I'm stressed. So example create करेंगे out of the people in HR और especially जिस तरह आप leadership role में जाते रहते हो, you are right on the target. So there is a great responsibility on HR professionals over there. एब्सोल्युटली एग्रीड. बिल्कुल. और वैसे भी जिस तरह से यू सेड कि जिस तरह से आप ऊपर जो है वो जाते रहते हैं, यू राइट, यू बिकम एन इजी टारगेट एज वेल. मतलब लोग सोच सकते हैं कि यार मतलब यू आर नॉट दैट एक्सेसिबल एनीमोर, बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो समवन हु कैन बी सीन फ्रॉम अफार, so who can be targeted from afar as well. So I agree. Acha, Sadia, quickly moving on to the core of the program today. So when we were discussing, when we were envisioning what the program would be about, we decided we're going to talent acquisition basically, and the reason for that is because काफी सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में, they are university graduates, and university graduates का सबसे बड़ा जो मैंने आज तक होना देखा है ना, वो ये है कि they are not able to find jobs, and on that they're not able to find jobs that pay well. तो उसमें टैलेंट एक्विजिशन जो है, व्हाई मतलब start with the funniest of the mistakes that the new applicants make, the first timers make. The mistakes that new applicants make, एक तो the layout of the resume. अच्छा, that's Because oh, that is very important, very important. अगर मुझे कोई CV जो ना वो confused CV लगता है ना, आप राइट से लेफ्ट रीड कर लो, टॉप से बॉटम रीड कर लो, ठीक है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, और कोई इसकी सेक्शनिंग नहीं की हुई, ईमेल एड्रेसेस बहुत स्टूपिड और फनी है, ठीक है, और प्रोफाइल पिक्चर्स आपने अपने रिज्यूमे पे जो लगाई हुई है वो शादी की हैं या ट्रिप्स की हैं, प्रोफेशनल नहीं है. So all this matter a lot because CV is a breakthrough into any Okay. organization's application tracking system या automated system जो भी उनका है, या अगर वो नहीं भी है, even though landing into someone's inbox, it's a breakthrough. It's the first point of contact. So ये आपका एक mode of personal branding है जिसको हम लोग seriously नहीं लेते हैं. पर्सनल ब्रांडिंग है, एग्जैक्टली. अच्छा अच्छा, ये चीज वैसे वाकई हमने भी सोची जब जब छोटे थे. मुझे याद है, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू हैव एन ईमेल बाय द एलियास मी सिंपली द बेस्ट. अब मतलब व्हेन वी, अब तो हमें See, you समझ आ made me laugh. it still to this date मतलब it gives me a good laugh. मगर मगर it's like कि हाँ, सही टाइम पे शायद थोड़ा समझ आ गया कि यार this is not something that you write. So anything comes to mind in terms of funny email addresses? नहीं, ऐसा अभी नहीं आ रहा क्योंकि अब people are aware now. People are now aware, they know.
प्रोफेशनल्स होने चाहिए आपके ईमेल एड्रेसेस, और अब Right. तो आपके फोन पे भी आपको एक रजिस्टर फोन से ही ईमेल से करना पड़ता है ना, तो पहले टाइम्स में तो नहीं था ऐसा। सो पहले तो लोगों ने बहुत इसको कैजुअल वे में लेते थे। Mm-hmm. नाउ दैट्स नॉट द केस, पीपल आर वेल अवेयर। यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट सेशंस करा के यूनिवर्सिटीज ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है इस बारे में, एटलीस्ट ये ठीक कर लो। बल्कि रिज्यूम, आपको तो पता है यूनिवर्सिटीज में पूरे पूरे सेम टेम्पलेट्स होते हैं, हर Yeah, यूनिवर्सिटी yeah, का yeah. एक अपना टेम्पलेट परफॉर्मा चल रहा होता है। टीचर्स की कोशिश होती है कि उस टेम्पलेट को यूज करते हुए ग्रेजुएट्स Mm-hmm. जो हैं अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर लें, Mm-hmm. for them to to be right on the track. Later on they can Yeah. tweet, or they can make a new version out of their template design, but initially they give the complete guidance. हाँ, यूनिवर्सिटीज का जो करियर सर्विसेज ऑफिसेज वगैरह होते हैं, नाउ आई थिंक दे बिकम मोर proactive in talks and everything. Now the students are realizing more the importance of standing out, and the need for it. Because I think, Balki, you can enlighten me on that. How many resumes do you get per vacancy? यार अगर तो नॉर्मल पोजीशन है ना, ग्रेजुएशन ओपनिंग पोजीशन है, फ्रेश ग्रेड की पोजीशन है, सो इट मे टेक द नंबर में गो अप टू 300 400 सीवीज, बहुत आराम 300. से, स्टार्टिंग फ्रॉम 50। Okay. और इसमें क्या होता है, बिल्कुल। like और अगर जो लोग qualified नहीं भी होते हैं, do they also apply, or are we talking about people who are completely qualified to apply for the job? नहीं, it's a mix, it's a mix, people who qualify and who do not qualify। qualified तो आपके आपके पास 30-40 निकलेगा, that's it। अच्छा. एंड इट डिपेंड्स, ये भी एक फ्रेश लेवल पोजीशन है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बल्क मिलेगा। जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशंस की तरफ जाते रहते हैं, और उसमें भी अगर आप स्पेशलाइज पोजीशन में चले जाते हैं, देन सीवीज शॉर्टलिस्टिंग होती है, लेकिन उसमें भी कुछ नॉन रिलेटेबल रिज्यूमेस आपको लैंड कर जाते हैं। Okay, how do, I mean, even if there are 40 CVs for a single vacancy, let's say it's a starter's position, so how would my CV stand out, let's say? अच्छा, उसमें ये तो है कि एक तो कीवर्ड्स, जो जॉब डिस्क्रिप्शन पब्लिश्ड है फॉर द पोजीशन Hmm. दैट यू आर अप्लाइंग, तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत जरूरी है Hmm. कि यू यूज द कीवर्ड्स जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज हुए हुए, और Like in आपके your resume, एक्सपीरियंस use से those words. आप, हाँ। Okay. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज कि आप जो है आपका सीवी, इट शुड बी प्रेजेंटेबल जस्ट लाइक योरसेल्फ। इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, प्रॉपर सेक्शनिंग होनी चाहिए। प्रोफाइल Okay. पिक्चर मैटर्स अलॉट, आप पर्सनैलिटी को देख के आपको बहुत ज्यादा अंदाजा होता है। ईमेल एड्रेस, लाइक आई सेड अगेन, ईमेल एड्रेस बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। स्किल्स, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इन द जॉब, वो Hmm. आपने मेंशन करनी है एज पर योर एक्सपीरियंस एंड योर बैकग्राउंड। Right. Okay. Okay. तो या you have mentioned कि यार जो picture है वो भी काफी important होती है. So I have seen some people say कि picture अब इतनी important नहीं है. If you don't want to, share your picture with us, it's okay. So why is picture, with the using pictures on your profile is still important? Like resume के अंदर. सी अमर, नाउ वी आर इन डिजिटल एज, ठीक है। सो इसमें टू गेट टू नो द पर्सन इन द फर्स्ट हैंड इज नाउ वेरी इजी। पिक्चर तब Hmm. इंपॉर्टेंट नहीं होती थी जब लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे। Right. फॉर मी, आई थिंक इट्स प्ले अ वेरी गुड एंड की रोल। Okay. सो बहुत सी कंपनीज, बहुत से एम्प्लॉयर्स एप्लीकेंट्स के जाके लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी देखते हैं। मैं उसकी जरूर देखती हूँ जिसने मेरा इंटरव्यू लेना हो। आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी, अच्छा. ठीक है, तो इन माय केस इट्स वाइस वर्सा। बट Yeah. अब हम डिजिटल Right. एज में हैं तो यूज करनी चाहिए। जब इम्पोर्टेंट नहीं रहती थी तब वो टाइम थे कि एक तो एप्लीकेंट्स अनप्रोफेशनल पिक्चर्स लगाते थे अपने रिज्यूमेस में, एंड देन नॉट एवरीवन वाज अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। Hmm. तो अब तो लिंक्डइन पे तो वैसे मैं देखता हूँ अभी भी लोग जो हैं वो अपना, किसी ने इस एंगल में पिक्चर खींची हुई है, किसी ने शादी की पिक्चर लगाई हुई है, किसी ने अपने बच्चे के साथ पिक्चर लगाई हुई है. सो वो, व्हाई डू पीपल स्टिल डू दैट अभी भी, मतलब व्हेन यू आर, बिकॉज दे मतलब डू मेरे नॉट को. थिंक कि या. LinkedIn is a professional platform. They just think it's a social platform, just like Meta or Insta, or you can say Snapchat, ठीक है। LinkedIn को प्रोफेशनल
करियर बिल्डिंग के लिए, करियर प्रोग्रेशन के लिए नहीं समझा जाता प्लेटफॉर्म। इसी तरह आप बहुत सी इररेलेवेंट पोस्ट भी देखेंगे लिंक्डइन पे। मुझे मुझे ये लगता है कि लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म दैट्स the value of which people don't really understand. मतलब I have seen my podcast grow so much from LinkedIn. It's primarily a free tool, or it used to be, चलो जब तक आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं ली। पर हम्म। लोग मुझे, it's a very undervalued किस्म का जो है ना प्लेटफॉर्म। बिल्कुल अमार, बिकॉज पीपल डू नॉट इन्वेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज हम्म। लिंक्डइन वर्क, या हाउ सच प्लेसमेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स वर्क। अब आप और भी Right. प्लेटफॉर्म उठा लो, आप इंडीड उठा लो, आप Yeah. और देयर आर मेनी अदर्स एज वेल। दे डू नॉट, देखो उनका ना एक एल्गोरिथम होता है और उनका एक परफॉर्मा होता है, ठीक है, द वे इट वर्क्स। अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि वहां पे अपस्किल की बेसिस पे लिंक्डइन ने बैजेस रिवॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं टू डिफरेंट Mm-hmm. इंडिविजुअल्स, जो Yeah, yeah, उनकी आप कह लो टॉप स्किल सेट है। सही है, तो yeah, इट्स yeah. इट्स वेरी इजी फॉर अ रिक्रूटर के उसके पास एक बैक एंड पे डाटा हो जिसपे स्किल सेट्स पे वो फिल्टर लगा के रेलेवेंट एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर ले। Mm, मसला यही है कि हम देखें, टिकटॉक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्नैपचैट ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई इफ एंड बट्स नहीं है, कोई सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर नहीं रिक्वायर्ड होता। इट्स ऑल फॉर yeah. फन, बाय फन, एंड वेरी इजी टू यूज। लिंक्डइन इज ऑल्दो वेरी इजी टू यूज, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपने उसमें अपना परफॉर्मा, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कैसे करनी। बिल्ड कैसे करनी है। एग्जैक्टली एंड इट टेक्स टाइम एज यू मेंशन भाई। किसी का भी मेरा नहीं ख्याल लिंक्डइन जो है वो ओवरनाइट ब्लूम करना स्टार्ट कर देता है। आई डोंट थिंक सो। आई हैव नॉट कम अक्रॉस मेनी और एनीवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जिसको लिंक्डइन पे जो है ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है। बट आई थिंक द सक्सेस इज लास्टिंग जब लिंक्डइन पे आपको मिलती है। इट गिव्स यू लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी एज वेल। ओ यस, डेफिनेटली, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक प्रोसेस है। दे जस्ट डू नॉट अवॉर्ड यू कि आपने एक पोस्ट लगा दी, या आपने एक पिक्चर लगा दी, या आपने एक स्टेटस अपना अपडेट कर दिया, या कोई क्वालिफिकेशन अपडेट कर दी। दे हम्म। हैव प्रॉपर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स इन प्लेस्ड, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज को अब ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं करियर प्लेसमेंट के, ब्रांडिंग के, ये थोड़े से उनका इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहिए बाय कॉलिंग आउट पीपल फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। उनकी ओके। सेल्स की टीम, उनकी बिजनेस मार्केटिंग की टीम, उनको बुला या के अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करवाने चाहिए प्रॉपरली। exactly, absolutely. Bilkul. Because at the end of the day, they're going to join the workforce. So better be prepared for it rather than saying, कि यार हमें job नहीं मिली है. At least मतलब make sure that you are putting in all your efforts from your side, and then of course फिर तो आगे जो जैसे भी है. अच्छा, सादिया, इंटरव्यूज में जब लोग आते हैं, so what are what should one expect? How should one prepare for an interview? Like मतलब from the dressing to the way someone speaks. मतलब हमने सुना ये भी है, we've come across some news, and not news but some thought leadership articles कि in the first 30 seconds the interviewer has made up his or her mind regarding the status of the job for the one who has applied. Yes, I find myself guilty in those 30 seconds अच्छा, because that is quite true. That so is what do quite you true. know in a person to first 30 seconds में how मतलब don't you think it's a lot of pressure on a person who's applied for a job? एक तो nervousness ही बहुत ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो, सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? हम्म। द वे यू वॉक इन, आपको बहुत रिलैक्स होना है, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड वेल ड्रेस्ड। कोई हम हाई-फाई नहीं कह रहे, बट वेरी टाइडी एंड क्लीन and Okay. confident, and just don't think it as of a interview, think it as of a discussion। जैसे आप बस में ट्रैवल करते हुए अपने किसी साथ वाले से बात कर रहे होते हो, आप उसको नहीं जानते, फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, टाइम पास करना होता है, और यू स्टार्ट गेटिंग नो द अदर पर्सन। बिल्कुल इसी तरह Okay. माइंडसेट के साथ जाएं। वी बिल्ड अ प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स व्हेन वी थिंक कि यू नो हमें तो जज किया जाएगा, हम असेस हो Yeah. रहे होंगे, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। द मोर नेचुरल यू आर, द मोर गुड इट विल बी फॉर यू टू स्टैंड आउट। हम्म। क्योंकि बिल्डअप जो आपकी पर्सनालिटी होती है, जो फेक पर्सनालिटी होती है, वो बहुत, वो 30 सेकंड्स में जज हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल। आजकल तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज के फंक्शन में देयर देयर साइकोलॉजिस्ट सिटिंग देयर एज वेल फॉर की पोजीशंस रिक्रूटमेंट।
वो तो मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं if a certain person has certain characteristics or if they're trying to become somebody who they are actually not. मेरा ख्याल है it has become quite identifiable आराम से. हाँ बिल्कुल, आई थिंक उनके स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं जो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं, इसलिए वो उनकी असेसमेंट का, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है. Right, right, right. Achha, Sadia, being staying on the topic, the same topic, Hmm. do grade does CGPA matter when you're recruiting for a position? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सीजीपीए मैं नहीं देखती अब सीजीपीए. इट्स लॉन्ग गॉन. इवन के फ्रेश कैट्स भी अगर आप हायर कर रहे हो, लॉन्ग गॉन. एंड इट्स नॉट जस्ट मी, माय एज ऑफ फ्रेटर्निटी, दे डोंट गो आफ्टर द सीजीपीए. Okay. It's one tool. It's not everything. And also considering कि हमारी universities are not upgrading their curriculum. They are a step back. And over the years, we are trying to build that gap between industry and academia. So Yeah. CGPA आपका theoretical part बहुत ज़्यादा बता Hmm. देता है. ठीक है. Then we discuss the projects, the thesis that they have done. उसके लिए भी Okay. evaluation criteria different होता है. It could be, मैं ये नहीं कहती कि biased होता है, but it does not give a true picture. पता Yeah. चलता है जब आप बात करते हो कि what was the essence of pursuing that project. और जैसे अभी Right. हमने बात की कि how one should prepare for the interview, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा important है कि research about the company. अगर हो सके तो research about the person who is gonna interview you. आपको जब भी interview की call Okay. आती है, you can ask कि can you tell me the name of the person who will be interviewing me? If not name, the Right. designation of the person. Right. And Right. then Right. prepare yourself by knowing कि will it be a panel interview or just a stand-up single interview? Will Yeah. it be an assessment, a case study? So इस तरह से जो कहते हैं ना fear of unknown खत्म हो जाता है आपका. होता ही है, हमें कॉल हाँ. आती है, हम कहते हैं जी हाँ हम अवेलेबल हैं, इस टाइम पे हैं, and then that's it. Take your time to evaluate कि कौन सी कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है और उसके ऊपर रिसर्च करके जाएं. अच्छा, ऐसा होता और है जब आप कभी रिसर्च कि करते लाइक हो आप कहीं पे जाते हैं और आपके सामने कैंडिडेट्स जो आते हैं उनको पता ही ना हो कि मैं किस कंपनी में आया हूँ या मैं किस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था. हाँ ये होता है, ये होता है. लेकिन ओवर द इयर्स ये अब होना बहुत कम हो गया है. Some of the people, they are so into fast paced this world. We need to blame a little bit on how we are operating in this world right now. We are too fast paced, too much occupied, too much into everything. कॉल आई, Yeah. बस मैं आ गया था. मुझे नहीं पता कहाँ से कॉल आई, मुझे एड्रेस आया था और मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ. समटाइम्स पीपल ऑल्सो डू नॉट रिमेम्बर कि किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया. Yeah. उसमें yes, the 30 seconds, I don't go for the 30 seconds my assessment. I let the person know कि आपने इस position की reply किया था एक comfort zone देके, क्योंकि you don't know what are the circumstances of the person sitting on the other side of the table. Maybe he is very competent and talented, so a fair chance देना चाहिए. Right, 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 exactly. Acha, we've talked about grades and we've talked about CGPA, but I have for sure come across, positions and companies they very clearly state, and I don't know if how it works for tech organizations. Maybe you enlighten me on that. But they say कि we're looking for candidates specifically from LUMS and from LSE and from IBA. So how extensively is that done? And how true is that for tech sector? अच्छा, ट्रैक में अगर आप फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेश ग्रेड्स की बात करो, मेकिंग स्टार्टिंग योर करियर, सो उसमें यस, टीयर्स बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशंस ने. सेम इज इन टेक. लेकिन टेक में अभी काफी टैलेंट वॉर भी चल रही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम थोड़ा सा लीलियंट हो जाते हैं उस साइड पे. बट दे आर 2 or 3 टीयर्स, टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज, देन बी टीयर यूनिवर्सिटीज, एंड देन बी माइनस टीयर यूनिवर्सिटीज. ठीक है. एचईसी की रैंकिंग के ऊपर और उनकी करिकुलम के ऊपर और उनकी एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स टुवर्ड द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द Yeah, सब्जेक्ट, इसकी yeah. बेसिस पे ये टेयरिंग की है. क्योंकि टेयरिंग इसलिए भी की है अमार, क्योंकि जो टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज होती है ना, फिर वो इनबिल्ट करना चाहती हैं, एम्बेड करना चाहती हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब वो थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं करती. जो उनकी केस स्टडीज होती हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उसके असेसमेंट्स होती हैं, उसके अंदर ये इनबिल्ट करके जो है वो एक पर्सनैलिटी का पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं इन द स्टूडेंट्स.
सो जब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे रोल्स के लिए फ्रेश ग्रेड्स हायर करने पड़ते हैं या एक्सपीरियंस रिसोर्सेज हायर करने पड़ते हैं, देन डेफिनेटली आपको पता होता है कि यार इस यूनिवर्सिटी में इस तरह की असेसमेंट्स होती हैं या इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। यानी फिर डिफरेंस तो, अच्छा डिफरेंस यानी बेसिकली फिर इस चीज पे आ गया कि आपने एक बंदे की, एक तो उसके टेक्निकल स्किल्स पे आ गया, एंड द अदर थिंग इज कि वो कितना होलिस्टिक साउंड करता है, और उसकी यूनिवर्सिटी जो है उसने उसको कितना ज्यादा, तो यूनिवर्सिटी के अपने ईथोस कितने स्ट्रांग थे, अपना उनका जो है इंक्लिनेशन कितनी स्ट्रांग थी टुवर्ड्स शेपिंग समवन्स पर्सनालिटी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें ये कि एक और बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है इन टुडेज वर्ल्ड, डाइवर्सिटी। सो आप टीयरिंग तो करते हो, लेकिन फिर आपको ये देखना होता है कि इस साल व्हाट इज गोना बी योर डाइवर्सिटी लेवल इन टर्म्स ऑफ हायरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आप डिफरेंट रेशियोज के ऊपर स्टूडेंट्स को जो है वो पिक करते हो, डेफिनेटली ऑन देयर असेसमेंट एंड देयर टैलेंट। सो दैट इज Like ऑल्सो मतलब ये वो, another important. it only makes sense. Like you wouldn't want all the people from Harvard, or you wouldn't want all the people from UMT or from LAMS or from LSE. Yes. So वैसे मतलब does it create a good बिल्कुल mixture of people when you, when they have, you know, people from, because I believe in my understanding where somebody has a great potential to learn from someone who is coming from tier A university. At the same time, there's also potential for a tier A university student to learn from someone from, you know, a tier B university. yes. यार फ्रैंकली स्पीकिंग टीयर बी तो बस हम टीयर हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी कमिटेड स्टूडेंट्स, बिकॉज वो बहुत नीचे से ऊपर आए होते हैं। ठीक है, सो आप उनके पेशेंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। टीयर ए के स्टूडेंट्स, दे विल नॉट स्टैंड 1 आवर अंडर स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन टीयर बी के स्टूडेंट्स जो हैं वो जो चूंकि इतनी मेहनत से अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस, अपने इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस से ऊपर आए होते हैं, दे आर वेरी कमिटेड, वेरी डेडिकेटेड रिसोर्स। ठीक है, दे विल स्वेट इन एंड आउट बिफोर क्विटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, exactly. Persistence. Absolutely, absolutely. That's okay. So, Sadia, another question. Between the soft skills, I mean, there's a war going on with soft skills, your hard skills, which are more important? Soft skills. Soft skills are very important because soft skills जो है ना, it's the attitude, it's the how part, how you are gonna perform at the work. So अगर वो अच्छी हैं, एक्सपेक्टेड लेवल को मीट कर रही हैं, तो हार्ड स्किल्स जो होती है ना, जो टेक्निकल होती हैं, इस काम को ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि हर कंपनी का अपना प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे होते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, वो आप उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज वो होता है कि कैसे करना है, दैट्स द व्हाट पार्ट। सो हाउ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ट्रेन एबल है भी, और फ्रेंकली स्पीकिंग टू द लास्ट एक्सटेंट ट्रेनेबल नहीं भी है। देर आर फ्यू केसेस जहां पे आप काउंसलिंग तक पहुंच जाते हो और ऑल यू कैन सी इज जस्ट अ 10% डिफरेंस और डेवलपमेंट। लाइक मतलब कुछ लोगों के अंदर, करेक्ट मी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट रॉन्ग, कि कुछ लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी होती नहीं है टू चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, और इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड टू चेंज देम, इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम। अब उस लॉन्ग टाइम का पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर के पास है, मैनेजर के पास है या नहीं है, दैट विल वेरी। That will be. अच्छा, so soft skills का एक part communication skills भी है. So when somebody is coming for an interview, do you evaluate them for their communication skills, and if so, how much? देखो, इट्स जॉब नीड। अगर जॉब नीड है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज इन सेल्स, जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, जिसमें रोज जाके लोगों को मिलना है, इधर टेलीफोनिक और इन पर्सन, सो यस कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर लॉट। लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल्स किसी बहुत ही देहाती और रूरल एरिया में है, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसी लेवल पे जो है वो असेस की जाएंगी। बट पर्सन लाइक यू इन मार्केटिंग, again communication skills are very important, so it's as per the job role। और देखो, हम communication skills को लिमिट कर देते हैं in speaking good English language। नहीं, Yeah, exactly. skills is also
पुटिंग योर मैसेज अक्रॉस, अगले बंदे को समझ में आए और उसके लेवल पे जाके आपने उसको समझाना है, वट एवर द लेवल इज। सीनियर लीडरशिप है तो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल और आपकी मेथडोलॉजी डिफरेंट होगी, आपके पीयर्स हैं तो डिफरेंट होगी, आप अपने से अपनी एसोसिएट से बात कर रहे हो, टीम मेंबर से बात कर रहे हो तो वो डिफरेंट होगी। सो हम कम्युनिकेशन स्किल्स को ना सिर्फ एफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज के पैरामीटर में जो ना वो लॉक कर देते हैं। वी नीड टू सी कि वो कितना रिलेटेबल है टू दी जॉब रोल। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि that's somebody's exceptional communication skills and I feel there are people who on purpose or sometimes just by a stroke of habit they use a lot of technical jargon, they use a lot of very fancy words. Does that happen that backfires on them? Oh yes, and unfortunately those people are not able to make it to the final round because Okay. it's all on the surface level, it's all the breadth, not the depth. So unfortunately, a lot of people they fall out from the process. Hmm. So you really have to walk the talk. Oh yes, हम इसको अपनी उसमें कहते हैं बहुत शशका है इस बंदे में, या अच्छा. बहुत ही फैंसी ड्यूड है, ठीक है। So these are the words that we technical recruiters or हाँ, recruiters use. cool guy syndrome भी हो जाता है. हाँ, ये भी हो जाता है, that's true. ओके, अच्छा. सो अब बहुत ज्यादा जो है प्रेशर और ज्यादा क्वेश्चंस मुझे अपने लोगों से भी जो आते हैं वो यही है कि भाई हाउ डू वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स इन एन इंटरव्यू. तो मतलब, और दूसरा एक चीज है जो कि मुझे भी इवन अपने इंटरव्यूज के अंदर जब मुझे याद है जब मैं जाता होता था तो हार्डेस्ट क्वेश्चन वुड बी व्हेन एन एम्प्लॉयर वुड आस्क मी व्हाट्स योर वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. So what's the best answer to this? ये देखो, the best answer is to be honest. ठीक भाई है, A, just be honest. yes, If you believe in long-term planning, हाँ, if you believe in long-term planning, yeah. ठीक है, अगर आप का कोई long-term goal भी है, तो just put it forward. And if you're someone who makes short-term goals, 3, 6, or just limit to 9 months, तो फिर just be honest about it. ठीक है, and Does yes, that आपने backfire on them? long-term अपनी planning, sorry. Does that backfire on them? Like, for instance, मेरा interview हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यार, I only think about the next 6 months in my life. I can't tell you my plan for the next 5 years, but the company is looking to hire somebody who is, joining them for the long haul. तो company वो कहेगा नहीं कि यार इस बंदे के objectives and my objectives do not resonate with each other. अच्छा देखो, मैं आपको भी ये दोबारा रिआइट्रेट करती हूँ कि बीइंग ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसका कोई डैमेज नहीं है। हर बंदा जो टेबल की दूसरी साइड पे बैठा है ना, जो इंटरव्यूअर कहलाता है, वो इसको एट द एंड एक्नॉलेज ही करता है। चाहे उसे रिसोर्स को हायर करना हो या ना हायर करना हो, वो ये कह के उठता है यार बंदा बहुत सच्चा था, ही केम अक्रॉस नीट एंड क्लीन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बिहेवियर भी है। इंटेग्रिटी या होती है या नहीं होती, बीइंग ऑनेस्ट। सो और सच पीपल गो लॉन्ग वे। आपको एक ऑनेस्ट रिसोर्सेज मिल जाए, आप उनको ट्रेन कर सकते हो, आप उनको उनकी कोचिंग कर सकते हो, आप उनके लिए ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। बहुत से हमारे पास स्पेशली फ्रेश ग्रेड्स की जब हम बात करें, सीएस टेक की बात करें स्पेसिफिकली, दे आर सीएस ग्रेजुएट्स बट डेवलपमेंट नहीं करनी ये पता है, ठीक है, बट आप डेटाबेसेस में जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, बिजनेस एनालिस्ट में जाना है, बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं नहीं पता, बट इफ दे आर ओपन तो हम उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं ये करियर लैडर्स है और ये करियर पाथ्स है। वी विल, हम लोगों ने तो अब टेक में भी, स्पेशली टेक्सल की अगर मैं बात करूं तो टेक्सल ने टेक में जो है वो, जैसा आप कहते हैं ना एमटीओ प्रोग्राम होता है, गिविंग द फ्लेवर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद देन दे गो टू देयर पेरेंट डिपार्टमेंट। सो हम लोग पेरेंट डिपार्टमेंट उन्होंने कोई चूज तो नहीं किया होता, सो वी गिव देम द फ्लेवर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द होल लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद व्हेन वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू चूज। सो बीइंग ऑनेस्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन देखो, इस सवाल से इंटरव्यूअर एंगेज क्या करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि हाउ क्लियर दैट पर्सन इज व्हेन इट कम्स टू हिज और हर फ्यूचर। ए, बी, कमिटमेंट। ठीक है, सो अगर आप अपने आंसर को इस तरह से कंपेलिंग बनाओ कि यू बिलीव ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड दीज आर माई शॉर्ट टर्म गोल्स, बट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड मी inclusivity and with
invest on my learning and development, I will Yeah. stick around more, and I will, and it will make easy for me to carve my journey for a long term goal. So such answer like that would be very appealing towards the interviewer. आई थिंक यूर एब्सोल्युटली करेक्ट. मेरे ख्याल है वही वाली चीज़ है जो हम अक्सर इवन लिंक्डइन वगैरह पे भी देखते हैं. दे एम्प्लॉय, यू नो, यू कैन ट्रेन समवन ऑन एनी ऑफ द स्किल्स that your organization needs. Technical skills learn karna, I think that it's not that difficult in my understanding. Soft skills, yes, as a matter of fact, you go through very rigorous programs to develop those and instill those habits in you. So you're right, because integrity and, you know, truthfulness or was a, you know, being bold about what you have to say is not something that you will develop overnight. It's not something that you will develop in a couple of weeks. उसके लिए पूरा एक कोर्स है वो करना है और वो कैरेक्टरिस्टिक वाला बंदा ढूंढना. आई थिंक that is where it becomes all the more difficult for recruiters. So I get your point. और हमारे इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बीइंग ऑनेस्ट या ट्रूथफुल ना इन द इंटरव्यू, इट्स अ विन विन सिचुएशन. इंटरव्यू के लिए भी, इंटरव्यूअर के लिए भी. क्योंकि देखो, अगर आप ट्रूथफुल नहीं रहे, यू विल मेक योर वे टू द कंपनी, लेकिन उसके बाद आप स्ट्रगल करोगे बिकॉज यू आर नॉट ऑनेस्ट. एक के बाद वो कहते हैं ना, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, फेकिंग आउट, फेकिंग आउट, फेकिंग आउट. एंड में जाके जो है ना, वो बहुत एम्बेरसमेंट मोमेंट हो जाता है, क्योंकि यू कैन नॉट फेक इट टिल द एंड. You cannot fake it till the end. Exactly. मतलब आपको पता ही नहीं है वो चीज, आप एक दफा झूठ बोल लोगे, दो दफा झूठ बोल लोगे, but at the end of the day, one day you're gonna get caught. Yes. Exactly. अच्छा, there's this question that many people ask, what's the best way to introduce yourself in an interview, or especially the students? उनको मेरा ख्याल है अपनी universities में भी, you can tell someone how to write a CV, but it becomes all the more difficult to, you know, actually train them on what to say during an interview, especially when it comes to the introduction part. अच्छा देखो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक रिहर्स करो अपनी एलिवेटर पिच. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It's equally important for me at this age, with this experience as well, because every job role is unique. Right? So elevator pitch prepare करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. उसमें देखो, आप holistic view दो, आप अपना background बताओ from your educational point of view, and then अगर आपको कोई experience है या आपने projects किए में university में, link up with the job role. कि उस job की क्या demand है. Right? And then lastly, tell them about your interest. What interests you? What fascinates you? या आपकी career aspirations क्या है? So these three things in 3 to 4 lines, they are very good. चलो lines आप ज़्यादा कर लो, आप 7 to 8 lines कर लो. But these things, these 3 pillars are very important in introducing your background. अगर आप अभी मुझे for example कहो, तो I would just introduce myself that this is Sadia Afzal. I hold for over 14 years of experience, and my portfolio encompasses around talent management, employee development, and I believe in thriving the organization through its culture. So एक बड़ा holistic view मिल गया, और इसमें मैंने अपनी बैकग्राउंड ऐड कर ली. ठीक है. और अब तीसरा पार्ट, करियर एस्पिरेशन, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द फ्यूचर. सो आई एम समवन हु लुक्स टुवर्ड, यू नो, career opportunities, where I'm able to learn more, and having a very open culture, open environment, something like that. So इससे पता है क्या, इससे एक आसानी भी होती है कि इंटरव्यूअर के जो फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रेज हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक इतना दमदार इंट्रोडक्शन दे दिया है कि उसके काफी क्वेश्चंस आपने वहीं पे किल कर दिए. फिर वो आएगा डेप्थ की तरफ. ब्रेथ कवर हो गई आपकी, अब वो आएगा डेप्थ की तरफ. यानी उसका मेन मसला जो है आपने सॉल्व कर दिया है. नाउ ही हैज और शी हैज बिकम इंटरेस्टेड इन यू. नाउ यू विल टॉक बिजनेस. ओह यस. तो आपने वो 30 सेकंड्स, यही वो 30 सेकंड्स है जो कि आपको बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बट यू नो आपको प्रिपेयर करना चाहिए. देखो, मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देती हूँ. अगर आप किसी ग्लोबल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका ग्लोबल रोल के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बताओ कि आपका एक्सपीरियंस डाइवर्स कल्चर्स में काम करने का कैसा है. अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो डाइवर्स कल्चर के ऊपर आपने कोई ट्रेनिंग्स ली हो, कोई सर्टिफिकेशंस की हो, या आपने विद इन पाकिस्तान ही, विद इन वन कंट्री आपने मल्टीकल्चरल लोगों के साथ जो है वो काम किया हो. तो अगर ये चीज आप अपनी इंट्रोडक्शन में ऐड कर लोगे ना, इट्स गोना नेल यू. Right. And what about multi-industry? Like, when you talk about multicultural, so does that mean that it's multi-industry as well? Uska bhi benefit hota hai, ya does that is not considered something that somebody should do?
नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि देखो आपकी अपनी पर्टिकुलर फील्ड डिफरेंट इंडस्ट्रीज में किस तरह से काम कर रही है, उसका एक या एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। अच्छा सादिया, बस आपसे आखिरी दो तीन क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुड समवन आस्क के सैलरी कितनी है ड्यूरिंग देयर फर्स्ट इंटरव्यू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। First interview, so you don't stand a chance to even ask. Otherwise, you will be accessed as someone who is running after money, or whose motivating factor is money, not the company If it culture, actually not the is. company name. देखो, उसमें पता है बेहतर ये होता है कि आप को जहां से इंटरव्यू कॉल आई है, आपके पास एक आधा दिन होता है नॉर्मली। हम्म आप अपनी थोड़ी सी ना मार्केट रिसर्च कर लो, हम्म। इसमें क्या सैलरी ब्रैकेट्स हैं, क्या बेंचमार्किंग हुई है। यू मे हैव सम फ्रेंड्स ओवर देयर, या लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच कर लो। बट पहले फर्स्ट इंटरव्यू इज टू सून, इट्स टू सून। Okay, too soon. So नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, and the second question is also about salary. कि what are the major mistakes that people make, potential applicants make when they're negotiating their salary? अब offer हो गई, अब salary ओ mistakes क्या है? हो, जबरदस्त जबरदस्त सवाल। अच्छा, इसमें ये होता है कि दे बिकम वेरी असर्टिव, and they are not polite about it as well. एक होता है assertive, being with a humble tone, with a respectable manner. But another side, flip side of it is कि they are not polite about it. सही है? So that is something that you should not do. B, people don't know कि हर कंपनी का अपना एक टोटल रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पनसेशन का, बेनिफिट्स का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। इंडस्ट्री वाइज सेम हो सकता है, बट इट डज वेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज। उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्राई टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। होता क्या है, यहाँ रिक्रूटर ने आपको एक सैलरी ब्रैकेट बताई, और वो बेनिफिट्स अभी बता ही रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो सैलरी पे स्टक है। आप ये देखो नॉन कैश बेनिफिट्स आपको कितने मिल रहा है। And ठीक है, non-taxed as well. देखो वो जो आपके बेनिफिट्स है ना, वो आपको टैक्स से भी बचाते बचा लेते हैं। हैं। जो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे रहे हैं ऑन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, Yeah. सो और उसका अपना एक शशका है। देखो, बेनिफिट्स को पर्क्स कहा जाता है ना, उसका एक हम्म अपना शशका होता है। तो आप टैक्स से भी बचते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग कि किस कंपनी का क्या कंपनसेशन बेनिफिट है। लिसन टू द रिक्रूटर एंड देन निगोशिएट। होता क्या है, आपने पहली सैलरी ब्रैकेट सुनी, पहली सैलरी अमाउंट सुनी, आपका माइंड वहीं स्टक है। उसके बाद रिक्रूटर जो मर्जी बोली जा रहा है, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू हम्म। दैट you know tone. So Yeah. these three things are very important. Right, right. Huh, I think it's important to understand कि यार salary, of course, everybody, but this cannot be denied. This cannot be underplayed कि यार लोग salary के लिए काम कर रहे हैं. But at the same time, it's important to see the bigger picture. It's important to see that one thing from multiple angles. क्योंकि मैंने कई दफा देखा है, I've literally come across people who say कि यार who are looking for their first jobs and they said कि यार हम तो नहीं कर रहे ये job because it's not paying us as much as we had expected. तो हम नहीं कर रहे, but then what you're actually missing out on is utilization of that time. कि आपकी वो पहली job है, you need to be, you need to start Hmm. something, because other than that आप निकल जाओगे and then I think मेरा ये ख्याल है कि psychologically भी it doesn't play well on you when you see your friends getting ahead and you're not in the same boat because you haven't yet started. So yes, I absolutely agree. It's important to see the whole picture. And lastly, and I know this is going to be a hard question, but I think this is also important to be asked, and it's something that's also done by a lot of recruiters. Hmm. I think that recruiters lie as well. They oversell their company and the role. Acha, so you have kind of used a very fancy word for the term हाँ, lie. Acha, so हाँ। that happened, and why do they do that? अच्छा, एक तो ये आई डू नॉट इनकरेज दैट प्रैक्टिस पर्सनली। दूसरा, क्योंकि जो हमने बात की ना कि विन विन सिचुएशन दोनों तरफ होती है व्हेन यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, Yeah. सो दैट व्हेन और जहां हमने बात की है ना हमार कि हम अपने आप को ट्रेनिंग इंटरव्यू के लिए ट्रेन करें, इसी तरह ओवर द टाइम ट्रेनर्स को भी बहुत ज्यादा, इंटरव्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा ट्रेन किया गया है।
over the time कि conversational interview कैसे लेना है, how to be open about different point of views, और उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है. मैं किसी का इंट्रोडक्शन मांगने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. हु एम आई, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह मैं उसको कंफर्टेबल करती हूँ जो मेरे पास कैंडिडेट आया हुआ है फॉर द इंटरव्यू, for whatever position it is. So coming back to your question, जो कि just skipped my mind. Can you remind me? Yeah, I mean, do the interviewers lie? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. They do, they oversell. ठीक है, कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइट्स, उसको वो थोड़ा सा जो ना वो हाइड करते हैं. एंड कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में भी समटाइम्स they try to make a false commitment or false statement is also very important. So yes, लेकिन अब क्या है कि इंडस्ट्री जो है ना वो कॉम्पैक्ट होती जा रही है, छोटी होती जा रही है. So everyone knows everyone. So अब रिक्रूटर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा उनकी भी एक पर्सनालिटी है जो कि, और उनका एक बिहेवियर है जो उनको मेंटेन करना है. अदरवाइज वो फिर पता चल जाता है कि यार ये जो रिक्रूटर है ना ये तो ही लाइज और शी लाइज और ओवरसेल, तो भाई नहीं, ये तो नहीं होने वाला. एंड इसीलिए कहते हैं ना कि कंपनी की रिसर्च करके जाएं, नॉट जस्ट अबाउट व्हाट दे डू बट व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर्क देयर, एंड ट्राई टू फाइंड योर रेफरेंसेस और योर कॉमन पीपल to know about the organization culture. Absolutely, absolutely. मेरा ख्याल है it's important to know about the culture. It's important to know if that resonates with you or not. Because अगर आपने अपना रिसर्च नहीं किया हुआ और आप वहाँ पे एक अच्छी सैलरी पर चले भी गए हैं, लेकिन अगर उस कंपनी की वैल्यूज और आपकी वैल्यूज में जो है एक डिफरेंस है, तो आई डोंट थिंक कि उस सैलरी का कोई आपको बेनिफिट एज सच होगा. बिकॉज मतलब ऑफ कोर्स वर्ल्डली मर्ज में तो होगा, बट यू वोंट बी मेंटली सेटिस्फाइड. तो अग्रीड. थैंक यू सो मच सादिया. इट वाज एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट मैं एडिशन करना चाहूंगी अमर. आपने जो बात की ना नेगोशिएशन ऑफ द सैलरी, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि देखो देयर इज अ एसोसिएट ऑफ माइन, शी वाज वर्किंग इन सम अदर कंपनी और उसने कहा कि ये मुझे टेक कंपनी है वहां से ऑफर आई है, सो 20,000 रेज है, बट दे हैव कमिटेड मी इंटरनेशनल ट्रैवल. सो इंटरनेशनल ट्रैवल की ना कुछ लगभग इतनी अमाउंट हो जाएगी. मैंने कहा why are you even asking from me? I know you're the person who have been waiting to travel. अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे ये कमिटमेंट की है कि यू दे विल मेक यू ट्रैवल, तो देखो एक ऐसा पर्क है जो आपको एक्सपोजर भी देगा, कंपनी आप पे इन्वेस्ट भी कर रही है, और आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद द सैलरी, क्योंकि सैलरी आप सेव भी करोगे तो भी वो आपके जो पर्क्स जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे. सो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल के यंगस्टर्स इतना नहीं समझते. बेनिफिट्स और पर्क्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी इन द टाइम्स ऑफ आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उसके शशके होते थे. सो इस चीज को अब जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सेव नहीं कर पाते. कैश, लिक्विड कैश आपका खर्च हो जाता है, और देन यू आर लेफ्ट विद द लिटिल पेनी. और तो इस तरफ आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जरूर करना चाहिए. Absolutely agreed. मतलब मेरा ख्याल है बहुत बड़ी reason for our parents, I remember, मतलब I was thoroughly, kind of pushed towards joining a government institute, just because primarily for the the perks, I guess. Or of course it's a very stable career, but at the same time there are lots of perks attached to that particular institution. So you would have guessed that organization. But I think this is how it is in Pakistan, and of course आपको वो कभी भी उसको undervalue या उसको जो है गलत assess नहीं करना चाहिए what the value actually is of everything that you get in terms of non-cash benefits. So thank you so much, Sadi. It was such a wonderful, remarkable conversation with you, and I really hope that whoever listens to this interview gets a lot of help as to how to best sell themselves to the interviewers, and at the same time also best prepare as a person to be someone who doesn't always have to sell or अपने आप को बहुत ज्यादा push नहीं करना, is becoming someone who the interviewers are after. बिल्कुल बिल्कुल, that's very right. की essence यही है, to prepare yourself and make it a natural part of your personality. Make it a natural part of your personality. Exactly. So thank you once again, Sadia, and inshallah I hope people will benefit from this. Take care. Yeah, definitely.